guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So today we're going to discuss about CLAT 2022, 60 to 65 days left almost, and some of you also have your board exams. So can we start from zero? Can we start from scratch? क्वेश्चन ये है कि क्या हम अब जीरो से कैन वी स्टार्ट from zero right now? The answer is yes, we can. I'm going to discuss everything today. I'm going to tell you कि हम सिर्फ और सिर्फ if we cover only the important topics from each section, then we will be able to cover the syllabus from zero. I'm going to give you a schedule, a day-to-day schedule I have for you, right? Ready-made schedule, day-to-day schedule. We're going to discuss everything in this video. I also have some free resources. If you just want to try and you don't want to invest money, you don't want to invest more money, then I have free sources for you, right? So you can study from there. You will just have to buy 2 to 3 books or maybe 4 also, but that's enough, and you will be able to prepare for the exam CLAT 2022. So let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. The first and the most important question that all of you have is, can I clear CLAT in 60 to 65 days? Now, I want to tell you, last year there was this student, a lot of students who shared their stories, and they told me, ki, ma'am, you know what, we started following your schedule, and that was a 30-day schedule, 45-day schedule that I had done in CLAT. CLAT 2021 के लिए किया था मैंने 45 days का schedule और 30 days का schedule. They followed that schedule, and yes, they are in NLUs right now. Okay, so if they can do it, why can't you? So you can also do it. And CLAT clear करना आसान है, you know, 60 to 65 days में. सबसे पहले तो मुझे एक बार बताओ, जो लोग 1 year से या 2 years से या 6 months से या 3 months से प्रिपेयर करें, क्या उनका श्योर है कि दे विल बी एबल टू क्लियर क्लैट? Is there anything of that sort? You guys have filled the form. उन्होंने पूछा from when are you preparing for CLAT? No, they just want a student who studies, who clears their exam, they'll give admission, right? So this is what is there. So everyone is trying. What everyone is doing? Trying. And so can you. You can also try if you got to know about the exam now. I know a lot of students, other students who prepare for the exam, or even some of the teachers, they might tell you that, oh, take a drop, you know, take a drop, give in December 2022, don't give right now. I would say try. There's no harm in trying. You can give 65 days to 70 days of your life to this exam, and maybe you get an NLU. I'm not saying 100%, but can we give 100%? If we give 100%, we have good chances, because students like you have done this. So can you. You have an example. For them there was no example, because for the first time I did these schedules last year, and they are the ones who have set an example for you guys, right? Now another thing why I'm saying CLAT is easier to prepare for in 60 to 65 days, because number one, the exam has less syllabus as compared to other exams. It has less syllabus, right? We do not have to cover grammar, we don't have to cover static GK, we do not have to cover puzzle type of questions like blood relations, coding, decoding, because that is not there in the exam. So less syllabus. Okay, number two, which is very important, it is a skill based exam. Now what is a skill based exam? Basically it is an understanding based exam. If you learn how to solve, you will be able to solve, or you will be able to attempt most of the questions, be it your legal aptitude, be it your legal part, be it your reading comprehension, that is your entire English. Okay, reading comprehension, legal part, then even your critical reasoning, that is your logical reasoning, is all based on understanding. There is nothing to learn. Look, for only you have to learn current affairs. The only part that you have to learn is current affairs, right? All others you read, you practice, and you are in a position to attempt the paper. So that is why CLAT is easier to prepare for in less amount of time than the other exams, because in other exams the syllabus is more, right? So yes, we can try. I always tell one story that मेरा contract का exam था. I had my contract exam, and
I was chilling at home, right? So there was this function at my place, and I came over, I was chilling, and I did not study for the contract exam. I did not study for the contract ka exam. And when I came back to my hostel, I realized that tomorrow is my exam and very less time is left. So what should I do? I decided that I will not give the exam, right? I will give it next year because I was a student who was known amongst the teacher that she gives her exams very carefully, she scores really well and has a good percentage and sometimes is even the topper. So I said I cannot put this badge of being a fail, of like failing in the exam, or be I cannot put this badge of that I failed in the contract exam, right? So I called up my mother. I said I won't be giving the exam. She said you will give the exam. I said how will I give the exam? Very less time is left. She said study only the most important topics. Go and give the exam. And you know what happened? I scored the most in the exam, right? I topped in the exam. I topped in the semester exams also. And the only thing I did was, and it was my luck also, I would say it was luck also because only the questions that I had studied, only the questions that I had studied were there in the exam. Even God wanted that I should top the exam, and that is why He made me study the questions that were there in the exam because He knew. So believe in God, believe in destiny, believe in luck, give your 100%. You have nothing to be anxious about. You're just giving 65 days of your life. I mean, that's not much, right? So there's nothing to be fearful about. Just give your 100%. Try it out, try your luck, but yeah, give your 100%. Follow the schedule. And yeah, if it happens, it happens. If it doesn't, you'll learn a lot from this एग्जाम, राइट? तो कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना? जो भी लॉगरियंस हैं वो प्रॉमिस करो, वी आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी आर गोइंग टू गिव 100%. देयर इज गोइंग टू बी नो एंजाइटी, नो फियर, only giving 100% with full power. That is what is a true logarian. एग्जाम देकर हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे. आपको लॉयर बनना है ना, लॉयर बनना है, मैं बहुत वेज बता दूंगी एक अच्छे लॉ स्कूल में जाने के लिए, ठीक है ना? बट हमने डिप्रेशन में नहीं जाना. प्रॉमिस करो नो डिप्रेशन, बट वी विल ट्राई, यू कैन ट्राई, ठीक है ना? और मैं आपको क्या दूंगी उसके लिए? एक प्लान और स्टडी मटेरियल, ठीक है ना? एक प्लान और स्टडी मटेरियल, राइट? सबसे पहले आप बोर्ड्स इवन रेलेवेंट नाउ, क्या बोर्ड्स अब रेलेवेंट है? आपको पता है CUET का एग्जाम आ गया. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहले बताओ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. देखिए, जिनका लॉ के अच्छे गुड कॉलेजेस में नहीं होता वो क्या करते हैं? लॉ के गुड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं? वो लोग BA या BCom या BBA में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में. देखिए, मैं आपको कहूँगी, अगर आप ऐसा बैकअप ऑप्शन ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी इनमें से कोर्सेज में एडमिशन लीजिए. एंड अगर आपको 2-3 साल फिर भी लगता है कि मुझे लॉ ही करना है, अगर तो आपका इनमें करियर बन रहा है एंड यू आर गुड टू गो विद दैट, वेरी गुड. जरूरी थोड़ा ना लाइफ में लॉयर ही बनना है. बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉयर ही बनना है, देन यू कैन गिव 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है? क्योंकि आपने 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी हुई है, तो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वैसे भी डिग्री ऑफ एग्जाम ईजी होती है, ठीक है? एंड आपके लिए वैसे भी ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ाई करी हुई है 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की. तो दीदी जो मेरा 1 ईयर वेस्ट होगा, देखिए लॉ के अंदर जो लॉ है, और या वैसे भी लाइफ के अंदर अब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि 1 ईयर जो हमारा है ना वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहता है. 1 साल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो पुराने टाइम थे जब जल्दी जल्दी से शादी कर देते थे. अब तो बहुत उम्र हो जाती है तब भी लोग शादी नहीं करवाते. तो 1 ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट हमारा बेनिफिट क्या होगा? या फिर तो हम 5 ईयर लॉ कोर्स जो आफ्टर 12th है वो अच्छे कॉलेज से करें. अगर वहाँ हम अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे तो हम अपना 1 ईयर लगा के एक गुड कॉलेज ले लें जो कि 3 ईयर लॉ कोर्स करेंगे हम. क्योंकि अगर हम एक बैड कॉलेज में जाते हैं तो क्या होता है? तो हमारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, प्लेसमेंट्स वहाँ पे होती ही नहीं, फैकल्टी बहुत ही बेकार होती है, स्टूडेंट्स आपके टाइप के नहीं होते हैं. तो ऐसा होता है. तो हम बात कर रहे थे आर 12 बोर्ड्स इवन रेलेवेंट, उसमें पास होना ज़रूरी है बिकॉज वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपके 50 to 60% भी आता है, अगर 60% भी आते हैं ना बोर्ड्स के अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
12th boards are not relevant anymore because अब आपके एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी CUET के एग्जाम पे होगी. व्हाट इज द सिलेबस ऑफ CUET? क्या दी हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप देखेंगे कि अगर आप जो भी BA के लिए एग्जाम्स देंगे तो मैंने अपने चैनल एग्जाम आयर पे सब कुछ बताया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वहां पर भी आपका मैथ्स, करंट अफेयर्स, लॉजिकल, ये वाले सब्जेक्ट्स ही हैं. बाकी मैं आपको एग्जाम आयर पे सारा डिस्कस करके बता दूंगी. तो यही चीज है आपके पास वहां के लिए भी, ठीक है ना? तो फिर आप 12th को अगर थोड़ा सा इग्नोर भी कर दोगे ना आज की डेट में, 12th में मार्क्स लेकर क्यों आते हो? 12th में मार्क्स इसलिए लेकर आते हो कि अगर मुझे BA BCom BBA में एडमिशन लेना है तो मैं 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होती थी. बट आपकी 12th की परसेंटेज अब रेलेवेंट ही नहीं है. अब आप कहोगे दी जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठूंगी, जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए बैठूंगी, वो पूछेंगे 12th के मार्क्स. यस, पूछेंगे. बट अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जब बैठ रहे हो, आप एक अच्छे कॉलेज में, यू आर इन अ गुड कॉलेज, they won't be concerned with your 12th percentage. They will be concerned with your overall percentage in the semester exams. What have you done? Have you done internships or not? Have you written research papers or not? How active were you in college or your university? That is what they are concerned with, not your 12th marks. अगर बुरे कॉलेज में जाओगे तो प्लेसमेंट की बारी ही नहीं आएगी. नो वन इज गोइंग टू कम टू टेक एन इंटरव्यू ओनली. So that is why if you give less importance to 12th board, that doesn't matter. But I would say discuss it with your parents. अपने पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करें इस प्रोपोजिशन को कि या तो 12th में अच्छे मार्क्स, नो गुड कॉलेज, या फिर गुड कॉलेज और 12th में थोड़े कम मार्क्स. ठीक है ना? डिस्कस विद योर पेरेंट्स. And also guys, if you want to talk to me directly, you can book a one-on-one session with me. This is a paid session. Link is in the description box. Do check that out. Okay, now we are going to plan for 60 to 65 days. कितने दिनों के लिए प्लान करेंगे? 60 to 65 days के लिए. Therefore we are only going to cover only important topics. वो important topics कौन से हैं? Which are the important topics that are 99.9% going to be there in the exam? I'm going to tell about the books. Now we are going to study short notes. We are going to study short notes and we are going to practice more. We're going to practice more, but we still need to have an idea. So we're going to study short notes. So I might tell you some different books because we have less time. Okay, so please, if you're following the 6 months, 8 months, 9 months, 1 year, 2 year schedule, don't get worried because you had time, so you were covering that. Now if you don't have time, these are the books that you need to go for. Okay, and I promise you, if you follow the schedule, you will get admission in some good law school. You will get admission in some NLU. So please don't give up. Don't think that drop is the only option. No, give your 100%. You can still try, you can still crack CLAT. I am telling you. Okay, how many marks you need to score? How many marks? Look, if you score 100 plus or if you aim for 105 plus, I think that is more than enough for now because you will get admission in some NLU. And if you score 100 plus, you might get admission in the top NLUs as well. 100 plus is what we are aiming for. 100 plus is what we are aiming for out of 150 marks. Out of 150 marks. Now, let me tell you about the exam in brief. So, we are going to have 150 questions. They are going to give us 2 hours, right? There is negative marking of 0.25 marks. So, अगर आप wrong answer दोगे तो वो आपके marks काट लेंगे, राइट? ये आपका पेपर है, 150 क्वेश्चंस, 2 आवर्स. और यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप होता है वो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन चेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. मतलब हर सेक्शन में पैसेज होंगे फॉलोड बाय क्वेश्चंस, राइट? पर क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, राइट? नाउ योर इंग्लिश लैंग्वेज इज इंटायरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. इंटायरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो पैसेज लर्न कर लिए कैसे सॉल्व करना है और 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे. अगर यहाँ से हम एम कर ले कि हमें 25 मार्क्स लेकर आने हैं, अगर हम यहाँ से 25 मार्क्स मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कि हमारा एम हो 25 मार्क्स लेकर आने हैं, तो हमें क्या करना है? 30 मिनट्स के अंदर हमें 5 RC सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है जो कि करेक्ट हो
और जो कि स्पीड से हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? करंट अफेयर्स में क्या मैं 30 के लिए एम कर सकती हूँ? आउट ऑफ 35 39 कर सकती हूँ 30 के लिए एम। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वाला जो आपका सेक्शन है 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है। जनरल करंट अफेयर्स ओनली सेक्शन जो आपको 30 मार्क्स भी दिला देगा और 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व भी आप कर पाओगे। लीगल रीजनिंग, लॉ बहुत ही इजी लगता है ये बच्चों को। दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। 35 to 39, अगर मैं कहूँ इसमें से 30 to 32 मार्क्स अगर ले आते हो तो क्या हमारा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद रह जाता है लॉजिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मैथ्स, ठीक है ना, और डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। लॉजिकल रीजनिंग 28 to 32, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कितने मार्क्स बन गए बताओ? 85 बन गए। हमें 100 लेकर आने हैं, 100 में से 85 प्लस और कितने लेकर आने पड़ेंगे? अगर सेफ साइड चले तो हमें हमें अगर हम 20 मार्क्स भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तब भी हमारा 105 आ जाता है। मतलब अगर हम लॉजिकल और क्वांटिटेटिव में से 20 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स भी यहाँ से अगर हम ले लेते हैं, 25 to 30 मार्क्स भी, हमारी एडमिशन हो जाएगी। लीगल रीजनिंग पढ़ना और समझना इजी है, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट है स्टडी करना, बट अगर हम अच्छे से उसको पढ़ लें तो भी हम इतना स्कोर लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो अगर ये 3 सब्जेक्ट्स में 85 ले आए और बाकी 2 में 25 to 30 भी आ गए तो एडमिशन पक्का है, एडमिशन पक्का है। स्टार्टिंग विद इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर हमारे 2 ही टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच सिर्फ 2 डेज का आपका टॉपिक है ये, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। हम एक्सपेक्टेडली हमारे पास 5 आरसीज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस आएंगे इंग्लिश सेक्शन के अंदर, राइट। नाउ लेंथ ऑफ द पैसेज चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए स्टेप 1 के अंदर यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व different types of रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, कि ना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, ये हमें पढ़ना है। ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? मैंने एक पीडीएफ शेयर करा हुआ है, फ्री पीडीएफ है ये बिल्कुल, ऑन माय वेबसाइट www.loggery.com, ठीक है। loggery.com पे जाइए, स्टडी मटेरियल पे जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ, यू विल फाइंड दिस पीडीएफ, ठीक है ना, एंड स्टडी हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दी हम स्कूल में भी आरसी सॉल्व करते हैं, तो इन आरसीज और स्कूल वाले आरसीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि स्कूल वाले आरसीज में वी फाइंड आंसर्स, हेयर वी हैव टू एनालाइज एंड गिव द आंसर। क्या करना होता है? एनालाइज करके फिर वी हैव टू गिव द आंसर, ठीक है ना। तो वो वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू एनालाइज एंड फाइंड आंसर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ भी है। अगर इफ यू स्टिल वांट, लाइक इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप कह रहे हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं 8 घंटे की सिटिंग दे सकता हूँ और मुझे पीडीएफ नहीं, मुझे बुक बताओ, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक बाय अरुण शर्मा, दिस इज फॉर कैट, ठीक है ना। तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। अगेन बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, आप ये बुक बाय कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या होगा? प्रैक्टिस। स्टेप 2 क्या होगा? प्रैक्टिस, ठीक है। जितना जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई करना, ठीक है। और स्टेप 3 हमारा क्या होगा? स्टेप 3 होगा एम अचीव करना। हमारा एम क्या है? 30 मिनट्स 5 RCs एंड स्कोरिंग मिनिमम 30 to 32 मार्क्स इन RCs। तो हमें RCs की ये एम अचीव करना है। Okay, that is what you have to do for your English. Let's talk about current affairs. चलिए current affairs के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, there is no static GK in CLAT, ठीक है ना। कोई स्टैटिक जीके नहीं होती है क्लैट के अंदर। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। साइंस, जनरल साइंस, ठीक है, ये सारे नहीं टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स, ये वाले टॉपिक्स नहीं आते, इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड ये सब आपको ये क्लैट के लिए नहीं पढ़ने हैं। क्या है इनका? नो, ये क्या है? इनको क्या करना है? क्रॉस, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमें करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, हाउ वी हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स। देखिए
वन ऑफ द मिस्टेक्स, जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। रीडिंग रीडिंग प्रीवियस ईयर्स एंड प्रीवियस मंथ्स न्यूज़पेपर, प्रीवियस मंथ्स के न्यूज़पेपर पढ़ना, ये करते हैं। ये मत करना, बिकॉज फ्रॉम वेयर विल यू रिवाइज, फ्रॉम वेयर विल यू रिवाइज। और जो ये करंट अफेयर्स हैं ये बिना रिवीजन के लर्न नहीं होते। इनको लर्न करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और नोट्स बनाने ऐसे तो मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। तो ये नहीं करना है। अब बात करते हैं क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैगजीन पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे पहले कुछ भी डिस्कस करें, हमें डिस्कस करना होगा ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपकी जो 2022 की न्यूज़ है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो आपकी 2022 की न्यूज़ है, मतलब जो हमारा जनवरी 2022 से लेकर आपका 15 मई 2022 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, इसमें से तो हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे ही, तो ये हमें कवर कर कर जाने हैं। यस, ये हम कहाँ से कवर करेंगे? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, आप आईएएस विजन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप दृष्टि आईएएस के लिए जा सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, देखिए अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका आईएएस विजन है और प्रतियोगिता दर्पण है, इनका 1 मंथ का 1 एडिशन ही आता है। 1 मंथ 1 एडिशन, 1 मंथ 1 एडिशन। बट यहाँ पे 1 मंथ के 2 एडिशन आते हैं, 1 मंथ के 2 एडिशन आते हैं। तो अगर बहुत टाइम है, अच्छे से करना चाहते हो, दृष्टि आईएएस से कर लो। कम टाइम है तो आईएएस विजन या प्रतियोगिता दर्पण में से एक चूज कर लो। ठीक है ना, दोनों को आप, प्रतियोगिता दर्पण का भी एक एडिशन बाय कर लो, आईएएस विजन तो ऑनलाइन है, फ्री में मिलता है, इसका प्रिंट आउट निकालो और देखो कौन सा सही लग रहा है। 10-20 मिनट्स 15 मिनट्स पढ़ो एंड डिसाइड करो। तो ये आपको करना है। 2022 की न्यूज़ तो हम अच्छे से कवर करके जाएंगे। तो वैसे तो देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो मैं कहती हूँ कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 की न्यूज़ भी कवर करनी है, बिकॉज 2021 में से भी क्वेश्चंस आते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्टकट मार देते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम मई 2021 टू दिसंबर 2021 की ही न्यूज़ कवर करें, अगेन फ्रॉम मैगजीन्स। ठीक है, और पीछे से करें, पहले दिसंबर 2021 पढ़ें, फिर नवंबर 2021 पढ़ें, फिर अक्टूबर 2021 पढ़ें, फिर सितंबर, फिर अगस्त, ऐसे। ठीक है, मई तक की ही न्यूज़ हम कवर करेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको बोलूंगी, एंड कवरिंग न्यूज बैकवर्ड्स। ठीक है ना, और कौन सी मैगजीन में से 3 मैगजीन्स के ऑप्शन दे दी हैं। जो भी मैगजीन पढ़ोगे यही आपके नोट्स बनेंगे, तो इसके अंदर ही आप अंडरलाइन करोगे, इसके अंदर ही आप मार्क करोगे, और यहाँ से ही बार 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 रिवाइज करोगे। क्लियर है इस बात पे? और हाँ, अगर आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, न्यूज़ बिल्कुल खत्म समझ में नहीं आ रही है, तो मैं डेली एनालिसिस कर रही हूँ। जब आप वॉशरूम जा रहे हो, जब आप फ्री बैठे हो, रेस्ट करने का मन कर रहा है, अपने कान पे हेडफोन्स लगाओ और ये एनालिसिस सुन लो। मैं बोलती हूँ वहाँ पे नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपना जो 3 आवर्स मैं आपसे मांगूंगी, अभी आने वाले टाइम में 3 आवर्स मांगूंगी मैं आपसे, वो 3 आवर्स के अंदर ये लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ये आप करो जब आप फ्री बैठे हो, आपका रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। सोने से पहले सुबह उठकर पानी पी रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, न्यूज़ सुन लो। वैसे मैं ये एडवाइस नहीं करती, बट ये आपको करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम आयर चैनल है मेरा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। इसका नाम आप देखोगे लीगल रीजनिंग सेक्शन है कहीं कहीं पे जगह पे, तो इसको लीगल रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड बोल देते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करें? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से शॉर्ट में कवर करना है तो कर लीजिए, यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं आप। अब अगेन देखिए, यूनिवर्सल्स की बुक में से मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, बट कम टाइम है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से ये तीनों टॉपिक्स पढ़िए, इनको अंडरस्टैंड करिए। नहीं तो आप ए पी भारद्वाज की बुक में से भी पढ़ सकते हैं, LANLR बाय ए पी भारद्वाज की बुक है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल्स में से पढ़िए, इसमें बहुत कम टाइम में टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है ना। व्हाट इज मैंडेटरी? मैंडेटरी क्या है? सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, मैंने बताया हुआ है हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, क्या वीडियो करी हुई है, हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग
क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है, हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस बाय लॉगरी, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने बताया वो कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, दैट यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू। स्टेप वन इज रीडिंग थ्योरी। स्टेप वन क्या है? रीडिंग थ्योरी। तो हमारे टॉपिक कौन से हैं? ये, ठीक है। हमारा एम क्या है? एम क्या है? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू लर्न, एंड नॉट टू लर्न। देखिए, जब भी हम कोई चीज, वेन एवर वी पिक अप द बुक टू अंडरस्टैंड समथिंग और रीड समथिंग, वी टेक इट दैट वी हैव टू लर्न, बट हेयर you don't have to learn, because for example the question, they have given you the definition of theft, and then they have given you a situation, and then they've given you the options, right? Now when you study criminal law, you will be reading about theft, so they are going to already tell you that okay, this is the definition of theft, you tell us this. So they are not concerned with do you know the, या वो आपके साथ कंसर्न इसलिए नहीं है कि थेफ्ट की डेफिनेशन तुम्हें पता है या नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हें थेफ्ट की डेफिनेशन की कितनी समझ है, लॉ की कितनी समझ है। तो यहाँ पे हमें इनको लर्न नहीं करना, हमने अंडरस्टैंड करना। तो वीडियो देख लेना आज के आज ही, रीडिंग थ्योरी एंड देयर आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। अब आप देखोगे कि जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है और 2021 का है वो अलग है बिल्कुल, क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हो गया था। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब से भी आपको मिलते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, वहां से आप बाय करते हो एंड सॉल्व करते हो, तो आप देखोगे कि अगर आप वो वाले पुराने टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो नए वाले पक्का से आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ओके, देखिए पहले पुराने वाले में फैक्ट क्या है? सिचुएशन, कि ए जा रहा था, ए की जेब में से किसी ने पर्स निकाल लिया, और फिर प्रिंसिपल दिया होता था, प्रिंसिपल इज लॉ बताया होता था, और फिर ऑप्शंस दी होती थी। पहले ऐसा आता था। अब क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल को एक बड़े से पैराग्राफ में छुपा देते हैं। तो अगर तुम्हें पहले वाला प्रैक्टिस किया हुआ है तो तुम नए टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। राइट, क्लियर है इस बात पे? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैथ्स की या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपको, अब बहुत सारे बच्चे 18 डेज वंडर सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ है। अगर 18 डेज वंडर सॉल्व कर रहे हो तो 10th में से सर्कल्स, 10th की एनसीईआरटी में से सर्कल्स एंड स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर लेना। इसका लिंक मैं दे दूंगी, मैंने निकाले हुए हैं चैप्टर्स। अगर 18 डेज वंडर सॉल्व कर रहे हो तब ये करना है, अगर 30 डेज वंडर कर रहे हो तो ये नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक कवर है 30 डेज वंडर में। तो 30 डेज वंडर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लीजिए, जैसे आपके परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशो, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। और फिर आपने ऑलिव बोर्ड की बुक में से ये टॉपिक सॉल्व करने हैं, और सिर्फ लेवल 1 सॉल्व करना है। ये आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए आपको करना है, ठीक है। क्लियर है इस बात पे? क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने www.logri.com पे आपके लिए एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो विली की बुक खरीद सकते हैं। एमके पांडे इस टाइम पे मत खरीदना, विली। टॉपिक्स आपके अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ना, और फिर प्रैक्टिस करना, बुक में से भी प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी प्रैक्टिस करना। करंट क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इतना ही करना है। ओके, डिस्कस करते हैं 60 to 65 डेज प्लान विद बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है एंड विदाउट बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो विद और विदाउट बोर्ड एग्जाम्स वाले दोनों के लिए ही जो शेड्यूल है वो मैंने डिस्कस किया है। दोनों शेड्यूल्स देखें, विदाउट बोर्ड एग्जाम्स वाले और विद बोर्ड एग्जाम्स वाले, सिर्फ और सिर्फ अपना शेड्यूल देखें और फिर पढ़ने लग जाएं, ठीक है। देखिए, प्लान विद बोर्ड एग्जाम, जो प्लान विद बोर्ड एग्जाम्स है उसके अंदर आपको 1 आवर देना है करंट अफेयर्स को, जिसके अंदर यू विल बी रीडिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है ना, रीडिंग करंट अफेयर्स मैगजीन। मैं आपके साथ न्यूज़ अपने चैनल एग्जाम आयर पे भी डिस्कस करूंगी, मंथली न्यूज़ एग्जाम आयर पे डिस्कस होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। देखिए, 10 to 25 अप्रैल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब 15 दिन हम अच्छा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दे रहे हैं। एम हमारा है कि 30 मार्क्स में से हम अच्छे खासे 25 का स्कोर ले आए, ठीक है। उसके बाद हम टॉट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप 2 दिन दे सकते हो अपनी थ्योरी पढ़ने को, और उसके बाद आप आ जाओगे अपने प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट विद आंसर्स की बुक है वो अमेजोन से ऑर्डर करना। अगेन क्रिमिनल लॉ के साथ भी थ्योरी और प्रैक्टिस,
कॉन्ट्रैक्ट के साथ थ्योरी और प्रैक्टिस। आपने सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नो अदर क्वेश्चन, ठीक है ना। लीगल जीके के होंगे, जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं करने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ थ्योरी सॉल्व करनी है, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाते तो वो सॉल्व करोगे। तो मेन एम है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लंबी लग रही है तो आप प्रियम्बल, लोकसभा, राज्यसभा प्रोसीजर्स जो हैं वो पढ़ लो, और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक्स रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग प्लस अजम्पशंस, ये पढ़ोगे आप। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये आप पीडीएफ में से पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, यहाँ पे हम अजम्पशंस 2 बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा इन्फ्रेंस कंक्लूजन आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं 11 जून को ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे हम मैथ्स क्या पढ़ सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा है, मतलब अगर हम 3 आवर्स दे रहे हैं तो मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके जैसे अभी बोर्ड स्टार्ट होने में टाइम है, आपके 26 अप्रैल से बोर्ड्स हैं, ठीक है ना। अभी आपके पास 15 डेज पड़े हैं, जब आपके पास बोर्ड्स नहीं, अभी बोर्ड स्टार्ट होने में टाइम है, ठीक है ना। और मुझे पता है सबके बोर्ड्स थोड़े थोड़े लेट ही स्टार्ट है, तो आप 3 आवर्स दे रहे हो, ठीक है ना। 3 आवर्स के अंदर मैं स्लॉट बना देती हूँ आपके, आपका 1 आवर का करंट अफेयर्स का स्लॉट है और 2 आवर्स का आपका स्टडी स्लॉट है। तो क्या हम, हमारे इससे पहले बोर्ड स्टार्ट हुए, हम 2 आवर्स का एक और स्लॉट बना सकते हैं, जहाँ पे हम क्रिटिकल, हम पहले ये देखिए यहाँ तक का सही चल रहा है हमारा कि हम अपना लीगल एप्टीट्यूड और इंग्लिश हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे तुम एक दिन फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लेना, ठीक है। बहुत टाइम दिया हुआ है हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या हम ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ये इस 10 दिन के जो हमारे बिफोर बोर्ड्स वाले टाइम है उसमें कर सकते हैं, और जो ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला टाइम है, जो हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इसमें मैथ्स कर लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हमारी 12 बोर्ड्स के मार्क्स इतने रेलेवेंस नहीं रखते जितना कि हमारा क्लैट का स्कोर या CUET का स्कोर रेलेवेंट रहता है। तो CUET के बारे में अगर जानना है तो एग्जाम ऐप पे सब कुछ बताया हुआ है, प्लीज डू चेक आउट। तो बात करते हैं प्लान विदाउट बोर्ड एग्जाम्स की। अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं जिसके अंदर आप 2 to 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाएं जिसमें कि आप करंट अफेयर्स कवर करें, उसके बाद 2 आवर्स का आप एक स्लॉट बनाएं जिसमें आप एक सब्जेक्ट कवर करें, और उसके बाद 2 आवर्स का आप एक और स्लॉट बनाएं जिसमें आप दूसरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको करना है। नाउ बात करते हैं, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉट्स, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अजम्पशंस, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। टाइम में 30 डेज, वरना ये डेज में बुक डिवाइडेड है, डे 1 डे 2, तो आप 2 डेज कर लीजिए, 5 दिन में 2 to 3 डेज हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आप मतलब 10th डे तक, मेरे ख्याल से अगर 3 3 डेज भी आप बहुत आराम से कवर कर लेंगे तो 12 डेज यहाँ तक कवर हो जाएंगे। अब जब आपका 25 मई को आपका मेजर सिलेबस खत्म हो गया, तो मैथ्स और करंट अफेयर्स आपके चलते रहेंगे। तो आपके स्टडी स्लॉट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप ये जो अपना 3 आवर्स वाला स्लॉट है करंट अफेयर्स के लिए ये रखिए, ठीक है ना। ऐसे के ऐसे कि करंट अफेयर्स न्यू पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक आप 1 to 2 आवर्स का स्लॉट, ठीक है ना, 2 आवर्स का स्लॉट आप मैथ्स को दीजिए ताकि आप खत्म कर सकें। और उसके बाद आप 4 to 5 आवर्स की जो स्लॉट है, 10 आवर्स का सिटिंग बनेगा, आप रिविजन पे लगाइए, सब कुछ रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने टेस्ट दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा। बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा टाइम देंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बोर्ड्स नहीं है। तो अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आप बिल्कुल बिल्कुल 100% ड्रॉप लिया था तो ये वाला स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है। एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन, जो कि एक पेड सेशन होता है, वो बुक करवा सकते हैं। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स। So guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If you did, please like the video and subscribe to the channel because it means the world to me. And also ask your queries in the comment section below. I will try to answer. You can also ask your queries for free on Instagram at IamLogri के नाम से हम वहाँ पर हैं. And you can also book a paid session, 1-on-1 session. उसकी सारी की सारी details description box में हैं. Do check that out and check the description box. That's it. Logri signing off. All the very best. Yes, you can do it. And this is a very practical schedule. Bye and take care.